Hello to all. This is our new topic started is paleontology. Previously we did some geomorphology and remote sensing. We completed that part, and this is our new class of paleontology. Okay. So for actually we have formed Arcs Geology. So any of you, if not enrolled in our courses, try to enroll, or simply first explore our YouTube's and Instagram pages. Here you see that we have varieties of topics covered. Like already we covered covered the mineralogy and crystallography part, and for my class is geomorphology we covered, and remote sensing we covered, and now going on topics are your borehole geology, igneous petrology, and engineering geology. Okay, so explore, and if you like it, then try to join us. Okay, so for this class we are going to start the paleontology part. Okay, so these are your syllabus of your GATE, NET, and your GSI, and we try to cover all the possible parts and important to your examination. Okay, so for today's class we are going to cover the life in the total geological record, the important functions, okay, or important the starting points, and the mass extinction, about taphonomy, taxonomy, what are those, about the correlations. Okay, we are going to cover today. So, and for all of you guys, follow the syllabus and correct me that if I am missing something. ठीक है, कुछ अगर कहीं पे मिस हो जाए तो आप मेरे को बोलना कि ये वाला टॉपिक कवर नहीं हुआ है. ओके, सो एक स्पेशल क्लास में वो सब हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, ये सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को हमेशा फॉलो करते रहना. सिलेबस, ठीक है. सो we know the time scale. We already have in our YouTube channel, or in our demo class we covered the time scale. Okay, so here is a means a diagram that shows if we are taking a clock. Okay, so the clock has 24 hours in it. Okay, 24 hour a day. Okay, in 24 hours, if you take a clock and we take 24 hours. Okay, so in 24 hours span of time, see the scale. Okay, try to imagine the scale only. In our total time, total from the earth's formation, if we take the earth formation at 0.00, मीन्स 12 बजे अगर फॉर्म हुआ, 12 बजे रात को अगर अर्थ फॉर्म हुआ, ठीक है, तो फिर पूरा दिन हम लोग लेंगे, पूरा दिन हम लोग लिए 24 आवर्स ऑफ टाइम स्पैन हम लोग लिए. ओके, अप टू टिल नाउ. तो हम देखेंगे बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्कियन यहाँ पे कितना जा रहा है, अप टू 21, सॉरी अप टू 18.5 आर्कियन जा रहा है. 18 आवर बस आर्कियन पीरियड ही गया बस. ठीक है, एंड क्वाटरनरी पीरियड अगर हम लोग स्केल लेंगे तो क्वाटरनरी बस 17 सेकेंड से ही आया है. फिर क्वाटरनरी के बहुत बाद और क्वाटरनरी के आसपास ही ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, जो होमोसैपियंस का. ठीक है, बस ये अर्थ का फॉर्मेशन का बस 17 सेकेंड्स ही हुआ है हम लोग को आने को. ठीक है, तो इसके पीछे कितने सारे एजेस हैं, कितने सारे मिलियंस ऑफ एजेस हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं. ठीक है, और कितना कुछ घट चुका है अर्थ पे.
तो इसका हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बस स्केल के लिए कि आपको स्केल, आपको एक दिमाग में सोचो कि बस 70 सेकेंड्स ही हुआ है हमें जन्म होने में। ठीक है, ओके, सो ये मूविंग टू ए पैलेंटोलॉजी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, और ये फन फैक्ट भी मीन्स आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ कुछ चीज़ें आपका एग्जाम के लिए, लाइक द फर्स्ट फिश, ओके, द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट in the Silurian period. Okay, and in the time scale also you have told to learn the periods and also their respective ages. ठीक है, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पीरियड्स के नाम के साथ, पीरियड्स, एराज और इपोक्स के नाम के साथ आपको उसका रेस्पेक्टिव एज भी याद रहना चाहिए। ओके, एंड फॉर द पैलेंटोलॉजिकल पार्ट, वो तो स्टैटिक अभी हो गया ना। फॉर पैलेंटोलॉजी कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है, लाइक इन द सिलुरियन देयर इज अ फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेयर इज फर्स्ट एम्फीबियन केम, फर्स्ट एम्फीबियन केम इन द डेवोनियन। फर्स्ट जॉलेस फिश, और सॉरी जॉड फिट फिश, जॉ का फॉर्मेशन हुआ फिश में इन द डेवोनियन। ओके, first reptile come in your carboniferous time. Okay, then is your first dinosaur कब आया, फर्स्ट डायनासोर आया योर ट्रायसिक में, और एक्सटिंट कब हुआ, एक्सटिंट हुआ क्रिटासियस में। तो पूरा मेसोजोइक को डोमिनेट किया कौन, डायनासोर। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायनासोर का ओरिजिन कब है, कब उसका स्टार्टिंग हुआ, इन द ट्रायसिक पीरियड, and is extinction of dinosaur in the upper Cretaceous period. Okay, okay, then which period is known as period of birds, or the starting period of the birds। फर्स्ट बर्ड का फॉर्मेशन हुआ जुरासिक पे, सी ये जुरासिक। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट, first flowering plant in Cretaceous. First primate means our ancestor, like your जो chimpanzee and all. Okay, and evolution of mammals तो बस क्वाटरनरी में ही हुआ है। okay, और mammals का पीरियड कब शुरू हुआ, mammals इधर फर्स्ट मैमल है ट्रायसिक में, ऑब्वियसली डायनासोर के साथ, तो फर्स्ट मैमल आया ट्रायसिक पे, पर डोमिनेंट कब किया, डोमिनेंट किया सेनोजोइक पीरियड पे mammals। okay, so from this slide you have to learn these things because it is very much important for your examination perspective। okay, first fishes, vascular plant, amphibian, reptile, then dinosaur, mammal, bird, primate, that's it। okay, you have to learn all the things because ये बार बार क्वेश्चन में आता ही रहता है। okay, now extinction। okay, extinction or death is a inevitable thing, मीन्स ये होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारे मेनली एक्सटेंशन बहुत हुआ है। ठीक है, बट मास एक्सटेंशन मीन बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव कब हुआ, डिजास्टर कब हुआ, तो हम लोग 5 पीरियड पे हुआ था, इंपॉर्टेंट पीरियड्स, लाइक योर ओरोविशन पीरियड। इन योर ओरोविशन पीरियड देयर इज अ डेथ रेट ऑफ 85%, मीन्स 85% ऑफ द स्पीसीज दे आर एक्सटिंक्ट और डेड। ओके, सो एक क्वेश्चन आते कि द हाईएस्ट डेथ रेट और हाईएस्ट एक्सटेंशन, हुईज पीरियड शोज योर हाईएस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर पर्मियन। सी पर्मियन पे 95% तक गया था योर एक्सटेंशन।
Okay, so Ordovician, Devonian, Permian, Triassic, and your Katy boundary. Okay, Cretaceous Tertiary boundary. एंड हियर अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन किस पीरियड पे हुआ था. मैक्सिमम एक्सटेंशन इज इन पर्मियन पीरियड. ओके, एंड यू हैव टू लर्न द रेस्पेक्टिव एजेस ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली जो मास एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जब भी मास एक्सटेंशन होता है तो एक कॉज के वजह से नहीं होता है. जैसे आपको पता है कि केटी बाउंड्री में जो हुआ था, केटी बाउंड्री में जो डायनासोर का डेथ हुआ था और एक्सटेंशन हुआ था, दिस इज नॉट द ओनली बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट. एक चीज़ कभी डोमिनेट नहीं करता, एक चीज़ के वजह से कभी इतना बड़ा मास एक्सटेंशन नहीं होता है. बहुत सारे अलग अलग कॉजेस हैं जिसको मिला के ये होता है. ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग पॉसिबल कॉजेस देखेंगे कि पॉसिबल कॉजेस ऑफ एक्सटेंशन क्या क्या हो सकते हैं. ओके ओके, तो सब लोग है ना. हेलो. ओके, चलो ठीक है. ओके, सो यहाँ पे एक नेशनल ज्योग्राफी का एक अच्छा सा यहाँ पे आर्टिकल था और यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो ट्राई टू रीड बाय योर सेल्फ ओनली. ठीक है, एक अच्छा एक आर्टिकल मिला, एक अच्छा सा इमेज मिला, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया. और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि ये जो ग्राफ है ना, दिस ग्राफ शोइंग योर फैमिलीज और द स्पीसीज कितना बड़े हैं. ठीक है, देखो जितने भी टाइम पे एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, उसके बाद देखो इंक्रीज ही हो रहे हैं. मीन्स हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक पुल बैक के बाद, एक अगर पुल बैक आ रहा है किसी पे, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो अपग्रेड होगा और मोर एडवांस वर्जन उसका निकलेगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पीसीज यहाँ पे कम हो गए थे, फिर बढ़े, फिर कम हो गए थे, और अभी देखो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस इज ओनली द लर्निंग पॉइंट यहाँ पे कुछ. ओके, सो फॉर द कॉज ऑफ एक्सटेंशन, क्या क्या कॉज, पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. अगेन, वन थिंग कैन नॉट decide a fate of something. There is a series of things or the combination of many things for a destination, for a extension. ओके, सो पहला कॉज, कुछ उसके कॉजेस हम पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, लाइक सी लेवल चेंज. ओके, अच्छा आप लोग सब लोग एक चीज़ को सर्च करेगा, दिस इज नोन एज ग्रेट फ्लड. ओके, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करिएगा ग्रेट फ्लड क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा. ठीक है, ग्रेट फ्लड क्या है. जो हम लोग ग्रैंड कैनियन का पार्ट देख रहे हैं, तो ग्रैंड कैनियन एंड द डेथ वैली का हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं, वो पूरा भरा हुआ था, रिवर्स में पूरा भरा हुआ था पानी में. ठीक है, और उस स्केल को इमेजिन करने के लिए आपको वो एक सर्च कीजिए ये ग्रेट फ्लड, और आप लोग फिर इमेजिन कर पाएंगे कि कितना बड़ा स्केल पे काम होता है यहाँ पे. ठीक है, सर्च इट गाइस, सब लोग यूट्यूब पे सर्च करना ग्रेट फ्लड. ओके, सो यहाँ पे देखो सी लेवल चेंज मीन्स सी लेवल कुछ अगर मान लो यहाँ पे है, अगर ग्रो हुआ सी लेवल, ठीक है, ट्रांसग्रेशन हुआ, तो ट्रांसग्रेशन हुआ तो क्या होगा कि अंदर तक जाएगा पूरा, एंड द लैंड एनिमल्स आर गेट अफेक्टेड. एंड द रिग्रेशन, जब रिग्रेशन होगा तो एक्चुअली रिग्रेशन ये बड़े स्केल पे होता है, हंड्रेड्स किलोमीटर में रिग्रेशन होता है. तो क्या होता है, जो स्पीसीज सारे रहते हैं इन द नेरिटिक जोन्स और योर कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं, उनका क्या रहेगा, उनका पूरा बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दे गॉट एक्सटिंक्टेड. अगेन यूज योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है, एक तो प्लेट मूवमेंट के बाद जो वोल्केनिज्म सारे ओपन होते हैं उसके वजह से भी होता है, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद क्या होता है कि देखो
मान लो यहाँ पे इक्वेटर पे थे, आपको पता है कि पांजिया जो था वो इक्वेटर के एरिया पे था, बट ये क्या हुआ, अगर ये पोल पे चला गया तो जो इसका जो मीन्स क्लाइमेट होगा, इसका जो वेदर होगा यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, सो इस चेंज की वजह से ऑब्वियसली एक्सटेंशन होंगे इधर। ठीक है, एंड योर सब्सिडेंस एंड एलिवेशन। ठीक है, लाइक ए फॉल्ट फॉल और कुछ माउंटेन एक्टिविटी हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत एग्नियस एक्टिविटी हो रहे हैं। ओके, सो देखो, अब ये और ये सारा चीज़ इंटरलिंक है। कैसे कि मान लो कॉन्टिनेंटल डिप में अब वोल्केनिज्म हुआ तो वार्मिंग और कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट हम लोग पढ़े थे आइस एजेस। ओके, सो यहाँ पे वार्मिंग एंड कूलिंग हो रहा है, जैसे कि मॉइस्चर है। ठीक है, अभी मॉइस्चर कुछ प्लांट्स के लिए या फिर कुछ एनिमल्स के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो जब मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो उनका ग्रोथ हुआ। इफ मॉइस्चर गेट्स डिक्लाइंड दे आर एक्सटिंक्ट। ओके, these are some climatic factors like your oxygen, carbon dioxide and O2 in your Cambrian explosion। जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ गए बहुत तो ट्राइलोबाइट्स फाइलोबाइट्स ये बहुत ग्रो किए, और जो इंसेक्ट्स थे उनका साइज बहुत बड़े बड़े थे। लाइक योर फ्लाइज जो थे, फ्लाइज यू क्या बोलते हैं उसको, क्या फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई वो हेलीकॉप्टर के साइज के थे, कुछ कुछ उस तरीके से। ठीक है, अब जब ओ टू डिक्लाइन हुआ, ओ टू जब डिक्लाइन हुआ तो वो लोग तो रहेंगे ही नहीं, देन दे गेट एक्सटिंक्टेड। ओके, in your biological factors we have phyletic और pseudo extinction। मीन्स हमें लगा कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, बट फिर वो एक्चुअली बाद में मान लो एक ट्राइलोबाइट है। ठीक है, ट्राइलोबाइट हमें लगा कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, बट एक्चुअली ट्राइलोबाइट एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, वो एक्चुअली और बेटर फॉर्म में डेवलप हो गया। दैट इज योर pseudo extinction। ठीक है, and you know all the natural selection process from the Darwin, and obviously like in our ये थानोस का बात भी यही है कि पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन होगा तो ऑब्वियसली फूड शॉर्टेज होगा एंड वी आर गोइंग टू द एक्सटिंक्शन। ठीक है, थानोस थानोस पता है ना, थानोस। एंड लाइक हियर ऑल्सो द सम केमिकल फैक्टर्स ऑल्सो लाइक इन द डायनासोर पीरियड में जो वेजिटेरियन जो थे डायनासोर्स। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक प्लांट मिलता था। ठीक है, वो प्लांट एक्चुअली जो था उसका जो केमिकल फॉर्मूला था उस प्लांट का, ओके, इट इज़ सुइटेबल फॉर द वेजिटेरियन डायनासोर्स। बट कुछ क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, इसका थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, एंड इसका जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया for the dinosaurs, and they ate that and they die there, and the chain goes on like वेज पे गए तो नॉन वेज वाले जो थे वो लोग तो अभी इसको खा नहीं पाएंगे, तो दे आर ऑल्सो गॉट एक्सटिंक्ट। दैट इज हाउ द केमिकल फैक्टर्स अफेक्ट। ठीक है, ओके, देयर इज ऑल्सो सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, यू कैन say it as फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, लाइक योर मेटेओराइट्स जो इम्पैक्ट हुए वो हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, these are just cause of extinctions। ओके, अब एक्सटिंक्शन बात कर लिए, अब एक्सटिंक्शन का बात कर लिए तो हम लोग अभी ओरिजिन का बात करेंगे। ठीक है, सम थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इज योर एमोनिया। सो थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, which three molecules is your hydrogen, water and your ammonia is very important। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या एटम्स दिख रहे हैं, ये सब एटम्स दिख रहे हैं। अच्छा, कार्बन यहाँ पे नहीं है, बट सारा हमें पता है कि जितने भी सारे अर्थ के फॉर्म्स हैं
जितने भी सारे अर्थ के फॉर्म्स हैं वो किससे बना है, वो कार्बन से बना है। ठीक है, फिर इनका कॉम्बिनेशन से और कुछ फॉर्मेशन हुआ और इनका वजह से, इनका केमिकल रिएक्शन की वजह से सम important functions are important molecules or compounds are forming, like your methane and your hydrogen cyanide, सॉरी इसका नाम थोड़ा सा भूल गया मैं। ठीक है, so these molecules are important, and for these molecules they combine and form the simple sugars or fatty acids। ठीक है, and the life and this simple atom lead to the formation of cells and then prokaryotes and then eukaryotes। ओके, ठीक है, छोटे छोटे चीज से ही बड़ा काम होता है। एंड दिस इज द प्रूफ। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम हुआ है। ओके, सो बेसिकली जो अपना इम्पोर्टेंट क्या है कि अमोनिया, मीथेन और एससीएन, इसका नाम याद नहीं है हमें। ठीक है, एंड हाइड्रोजन वाटर, दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ आवर लाइफ, and scientists are continuously discovering about the facts of the origin of life। और उनको जिस प्रोसेस पे ये सब मिला, ये मॉलिक्यूल्स, तो वो समझते थे कि वही है थ्योरी, वही है ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, देखो कुछ थ्योरीज, जैसे कि सम साइंटिस्ट से दैट अ इलेक्ट्रिक स्पार्क लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। ये कैसे पता किए कि एक एक्सपेरिमेंट से देखे कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक स्पार्क से एमिनो एसिड्स जनरेट हो रहे हैं, सुगर्स जनरेट हो रहे हैं, लाइक इन अवर दिस केस। यहाँ पे देखो सुगर्स, एसिड्स सब है ना यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो ईयर क्या है कि क्ले, दिस इज अ वेरी गुड एक्चुअली ऑब्जर्वेशन और क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स जो अपना लाइफ फॉर्मेशन हुआ है वो एक्चुअली किसके वजह से हुआ है, क्ले के वजह से। बिकॉज वो देखिए कि क्ले पे क्या हो रहा है कि डीएनए और एनएनए अच्छे से ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ग्रो होने के लिए अच्छे सा मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक थ्योरी बन गया। देन सम you also know this fact that life began at the deep sea vents because it has basic elements like your hydrogen, carbon, nitrogen and your heat and also water, सब यहाँ पे है। ठीक है, सो ये एक थ्योरी बन गया। तो बस बेसिक क्या है, बेसिक क्या है कि हम लोग को ये जहाँ पे मिले। सो इफ एनी ऑफ यू वांट टू रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक, तो आपको फोकस पे क्या रखना है, वाटर, हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, एससीएन, सुगर्स। ठीक है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट दिमाग पे रखना है। ओके, तो अच्छा ये सब एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली आपको सिलेबस में था तो यहाँ पे मैं डाल दिया। ओके, सो ये मूविंग, हम लोग आगे जा रहे हैं ताकि जो बेसिक्स अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो। लाइक दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। सो एक्चुअली वी ऑल नो बाय नाउ ओनली कि आपको मैक्सिमम आपको जितने भी हैं आपको पता है कि इवोल्यूशन जो है वो हम किसका थ्योरी फॉलो करते हैं, डार्विन जी का। ठीक है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन का हम लोग इवोल्यूशन थ्योरी फॉलो करते हैं कि क्या हुआ कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्पेसीज इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं उनके इसको बोलते हैं ग्रेजुअलिज्म। ओके, बट और एक भी इवोल्यूशन का थ्योरी है, उसको बोलते हैं हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अच्छे से इसको समझना। ओके, अच्छे से इसको समझना। फर्स्ट हम लोग ग्रेजुअलिज्म खत्म करते हैं। ग्रेजुअलिज्म आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो जितना फिट रहेगा वो उतना सर्वाइव करेगा, मीन्स जो ज़्यादा अडेप्ट करेगा फॉर द चेंज
ओके, जो जल्दी अडेप्ट करेगा इन द क्लाइमेट और फॉर द चेंज, वो इवोल्यूशन होगा और इवॉल्व होगा। ठीक है, दिस इज योर सिंपली योर ग्रेजुअलिज्म। proposed by whom? Proposed by none other than चार्ल्स डार्विन। ठीक है, सिंपली ये इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, व्हाट इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या बोले कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में बोले पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या बोले कि एक्चुअली जो ग्रेजुअलिज्म का प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज नॉट और सिंगल लाइन, और ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल बस ग्रेजुअल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले कि जो इवोल्यूशन हो रहा है अपना, तो इवोल्यूशन इज ए स्पेसिएशन इवेंट, और स्पेशल इवेंट कुछ स्पेशल कंडीशन के वजह से यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं और और इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है किसके वजह से, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुआ है उसके वजह से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्नेल्स थे, ठीक है, बहुत सारे स्नेल्स तो नहीं बोलेंगे, वी आर जियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोपोड्स थे लेट से, यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रोपोड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे गैस्ट्रोपोड्स है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे सी लेवल डिक्लाइन हो गया। ठीक है, जब सी लेवल डिक्लाइन हो गया तो देखो यहाँ पे एक बैरियर बन गया। ओके, जब ये बैरियर बन गया तो क्या हुआ, ये कुछ स्पीसीज ट्रैप हो गए और ये सब फ्री हो गए। ठीक है, जो लोग फ्री हो गए उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो जैसे चल रहा था वैसे चला। बट जो आइसोलेटेड हो गए, जो लोग यहाँ पे फंस गए, ठीक है, उनको जिंदा रहने के लिए क्या होगा कि रैपिड इवोल्यूशन होना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जिंदा होने के लिए उनको रैपिड इवोल्यूशन होना पड़ेगा इनका। तो क्या हुआ, ये लोग जो जो फ्री थे इनका तो इवॉल्व नहीं हुए, बट ये लोग इवॉल्व हो गए। ठीक है, दिस इज नोन एज योर स्टैसिस। व्हाट इज स्टैसिस, कि क्या हो रहा है कुछ के वजह से, कुछ देखो स्टैसिस में क्या था यहाँ पे था, देन कुछ वजह से आइसोलेशन के वजह से या फिर कुछ बैरियर के वजह से क्या हुआ, कुछ का रैपिड रिवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, कुछ का रह गया कुछ। ओके, फिर जब सी लेवल ग्रो हुआ, देखो फिर जब सी लेवल ग्रो हुआ, यहाँ पे देखो ये लोग इवॉल्व हो गए, पर फिर जब सी लेवल ग्रो हुआ तो क्या किए ये लोग, फिर यहाँ पे मिल गए। ओके, अब देखो ये लोग तो यहाँ पे मिल गए उनके साथ, और जो उनके प्रीवियस एंसेस्टर्स थे उनके साथ वो घुल मिल गए। बट इस बाहर का एरिया का कंडीशन अलग था, इस पर्टिकुलर एरिया का कंडीशन अलग था। तो ये जो बाहर आ गए ये लोग फिर सरवाइव नहीं कर पाए, देन दे गॉट एक्सटिंक्ट। ओके, आइदर दे गेट एक्सटिंक्ट, और कुछ कुछ केस में क्या होता है कि ये लोग ज़्यादा ही इवॉल्व कर गए और ये लोग पीछे रह गए, तो इनको ये मार देते हैं, या फिर ये लोग ऑब्वियसली पीछे रह के ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो एनी ऑफ दिस कैन हैपन, बट दिस इज योर इवोल्यूशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ओके, क्या हो रहा है कि एक स्पेशल इवेंट के वजह से कुछ पोर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीसीज गॉट इवॉल्व क्विकली। ठीक है, रेस्ट लार्ज पॉपुलेशन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ऐसा समझ में आया पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। हेलो, कुछ भी हुआ यहाँ पे, लेट से देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेट से उनका जो कॉइलिंग है वो बढ़ गया, या फिर उनका जो क्या एनी पार्ट्स, उनका जो एनी पार्ट्स है कुछ उनका ग्रेजुअल हो गया, कुछ इम्प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या देखें कि ये लोग इवॉल्व हो गए। क्यों इवॉल्व हो गए, क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन पे आ गए, एक स्पेशल एनवायरनमेंट पे ये लोग आ गए।
तो आपको जिंदा रखने के लिए यहाँ पे ये लोग इवॉल्व हो गए वहाँ पे। ठीक है, बाकी सब क्लियर ना सबका? ओके, देन वी मूविंग फॉरवर्ड। देखो, ये जो सब स्टेप पढ़े हम लोग, तो स्टेप यहाँ पे बस लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या था? स्टेसिस। देन योर आइसोलेशन। आइसोलेशन की कुछ कारण की वजह से, लाइक इन दिस केस दिस इज द ड्रॉप इन द सी लेवल। ठीक है, ओके। तो दीजर ये बस लिखा हुआ है सेम टू सेम। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब रीयूनाइटेड हो गए, वो रीयूनाइटेड हो गए, ठीक है, तो रीयूनाइटेड होने के बाद आइदर वो लोग ख़त्म हो गए क्योंकि वो अपने जो एंसेस्टर्स थे उनका कंडीशन को मैच नहीं कर पाए, या फिर वो लोग ख़त्म हो गए जो लेस इवॉल्व थे। कुछ भी हो सकता है। दिस इज योर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। एक्चुअली इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है नेट पे, अगर मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा, ठीक है। अगर आपको किसी को भी मिले इस पे तो शेयर करना, पर इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, पंक्चुएटेड एंड ग्रेजुअल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ चुका है नेट पे। देखो, एक टर्म है बस, व्हाट इज एनाजेनेसिस, क्लाडोजेनेसिस। क्या बोला कि यहाँ पे सेम नहीं होता है कि एक के बाद एक, कि यहाँ पे एप आया, एप के बाद कुछ ओरंगोटंग आया, ओरंगोटंग के बाद हम लोग आए इंसान, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और मोर स्पेसिएशन प्रोसेस, स्पेशियल प्रोसेस। ठीक है, जो अपना इवॉल्व हो रहे हैं वो कुछ स्पेशल कंडीशन के वजह से ही हुए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेंट रखना ही है एनाजेनेसिस एंड योर क्लाडोजेनेसिस। नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द टैफोनॉमी। व्हाट इज द टैफोनॉमी? टैफोनॉमी सिंपल है, मेनली क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉसिल्स, कैसे कैसे फॉसिल प्रिजर्व हो सकते हैं। तो फॉसिल के क्या क्या टाइप रहते हैं? बॉडी फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स। ठीक है, बॉडी फॉसिल पे आपको बॉडी का पार्ट्स मिलता है, ट्रेस पे क्या मिलता है? एनीवन? ट्रेस फॉसिल क्या होता है? कहीं पे फुटप्रिंट्स मिल गया या फिर एक मिल गया, चीज मिल गया, कॉप्रोलाइड्स। व्हाट इज कॉप्रोलाइड्स? एनीवन नो अबाउट द कॉप्रोलाइड्स? किसको पता नहीं है कॉप्रोलाइड्स क्या है? कॉप्रोलाइड्स इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनिमल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनिमल। तो वो देख के, कॉप्रोलाइड्स देख के हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये नॉन वेज था या वेज वेज वाला था। ठीक है, ये क्या क्या खाता था, इसका लाइफस्टाइल कैसा था, ये लोग हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक योर फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट ये लोग कहाँ कहाँ कवर किए। ओके, और ऑल्सो द बोरोइंग डिटेल्स, द नेस, एग्स, ऑल दीज आर कमिंग अंडर द ट्रेस फॉसिल्स। और बॉडी फॉसिल में मीन्स बॉडी का पार्ट्स मिले और कुछ नहीं, जैसे कि विंग मिल गया या फिर टीथ मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एंड मोल्ड के बारे में, कास्ट और मोल्ड के बारे में तो पता है। ठीक है, कि यहाँ पे एक वो डिप्रेशन जो फॉर्मेशन हुआ तो बोलते हैं मोल्ड, और जो फॉर्मेशन हुआ रहता है, मान लो एक्सचेंज होके कुछ यहाँ पे कोई और मिनरल फॉर्म हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, वो हो गया आपका कास्ट। या फिर कास्ट रहा यहाँ पे सेल रहा और इसका ये इम्प्रेशन बन गया मोल्ड पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एमोनाइट था, यहाँ पे एमोनाइट पूरा डिजॉल्व हो गया बट इसका इम्प्रिंट रह गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हो जाएगा कैसन मोल्ड। अब जैसे कि बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पूरा बॉडी हो सकता है? आइस के वजह से, लाइक योर ग्लाशियल एज के वजह से, जो आइस के अंदर मैमथ और आपका कुछ कुछ जो
जो आइस पे प्रिजर्व हो गए। ठीक है, आइस एंड योर अम्बर इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेशन टाइप, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंटैक्ट रहता है पूरा एक फॉसिल का। ठीक है, तो दीज आर टाइप्स, बॉडी टाइप्स, ट्रेस टाइप्स एंड योर मोल्ड फॉसिल, कास्ट एंड मोल्ड क्या होता है। ठीक है, और हम लोग क्या पर एक नोट बना लिया, अगर जिसको पता नहीं था तो कॉप्रोलाइट्स के बारे में एक बार नोट बना दिए। व्हाट इज कॉप्रोलाइट्स? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनिमल्स। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स। और आप लोग नोट में ये लिख सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेस फॉसिल्स। ट्रेस फॉसिल के अंदर क्या क्या आ रहा है? नॉट ओनली द फुटप्रिंट्स, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? द बरोस मीन्स जो होल, जैसे कि अपना रैट है, वो होल कैसे 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 बनाया, उसे हम पता कर सकते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, द ट्रेल्स, द फुटप्रिंट्स, दिस ऑल आर कमिंग, द एग्स, द कप्रोलाइट्स, these आर ऑल कमिंग अंडर योर ट्रेस फॉसिल्स। ठीक है, और एक चीज होता है और एक चीज होता है अपना पेट्रीफाइड वुड। पेट्रीफाइड वुड और योर मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्या रहता है कि लेट से यहाँ पे ये वाला बस मोल्ड हमें मिला। ठीक है, बट मोल्ड के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज हो गए। ठीक है, तो हम क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइजेशन जो हुआ था उसके हम पता कर सकते हैं कि ये इसका जो शेप कैसा था, ये सब कैसा था। ठीक है, यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बट ये इंपोर्टेंट है। व्हाट इज टैफोनोमी? द वर्ड the word taphonomy is important. What's the taphonomy? This is the preservation of the fossils. ठीक है, टैफोनोमी हो गया। नाउ द टैक्सोनोमी। बट टैक्सोनोमी में बस क्या भरना है कि कैसे क्लासीफाई हुए हैं, ये वाला चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आया था नेट पे। ये सब नेट वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, गेट वाले डायरेक्ट पूरा उस पर फोकस करते हैं, बट नेट पे ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है इस पे, इधर इधर उधर से। तो सो दिस क्लासिफिकेशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। शायद आया था भी एक क्वेश्चन में, शायद टैक्सोनॉमी में। तो किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड योर स्पीसीज। तो लोएस्ट स्टेप ऑफ योर टैक्सोनॉमी और ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज योर स्पीसीज। ठीक है, और जनरलाइज क्या होता है? जनरलाइज अपना होता है फैमिली, फैमिली ही जनरलाइज होता है। बट अपना पूरा लोएस्ट क्या है? स्पीसीज। ठीक है, ये सीरीज पूरा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, देन अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं। हमें पता है कि हम लोग देखे थे यहाँ पे, कभी देखे होगे आप नाम यहाँ पे, होमो सापियंस, या फिर मैंगीफेरा इंडिका, जो कि है मैंगो का। ठीक है, और पैंथेरा टाइग्रिस, ये सब होता है। तो जनरली ये किस पे लिखा जाता है? इटैलिक पे लिखा रहता है, जाते हैं। फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है, और ये किसका रहता है? ये मेनली जीनस का रहता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है और आप लोग नोट भी कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहता है? जीनस। सेकेंड पार्ट रहता है स्पीसीज का नाम, स्पीसीज। ओके, फर्स्ट वन इज योर जीनस, सेकेंड वन इज योर स्पीसीज। अब फर्स्ट वर्ड यहाँ पे रहता है कैपिटल, बट स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, ये स्मॉल ही रहता है। एंड ये कैसे लिखा जाता है? इटैलिक में। ओके, दिस इज योर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट आ रहा ये, फर्स्ट नाम रहता है जीनस, सेकेंड रहता है योर स्पीसीज। ओके, नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है अपना ये। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस पे अगर मैं पढ़ाता तो चलूँगा, बट अगर कहीं पे भी डाउट आए तो यू कैन स्टॉप मी।
सो व्हाट इज कोरिलेशन? ऑब्वियसली कोरिलेशन वर्ड की इंग्लिश वर्ड में ही पता चल रहा है कि हम दो चीज़ के अंदर कोरिलेट कर करेंगे कि इस पे क्या कॉमन है, इस पे क्या कॉमन है. ओके, एंड फॉर इन आवर स्टडी, for only studying this, by the study of this type or this area, we can predict the formation of this area. What are correlate between them? तो कोरिलेशन में क्या क्या कोरिलेशन लेते हैं? स्टैटिग्राफिक कोरिलेशन, लिथोस्टैटिग्राफी, क्रोनो एंड बायोस्टैटिग्राफी. ठीक है, एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे. ओके, फॉर दैट प्रीवियस थोड़ा सा हम बैक करते हैं और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ते हैं. लॉ ऑफ ई रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो कि प्रपोज किए थे कौन? डोलो. तो एक एक क्वेश्चन बन गया आपका. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, एक क्वेश्चन बना कि लॉ ऑफ ई रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन इज गिवन बाय ऑप्शंस एंड द आंसर इज योर डोलो. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है नेट पे. देखो ये सब स्पेस छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, बट ड्यू टू आवर लैक ऑफ नॉलेज, और हम लोग पढ़ने के लिए ऑब्वियसली इतने सारे बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं, हेवी हेवी टॉपिक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये सब हेवी हेवी टॉपिक्स रहते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ें छूट जाते हैं, लाइक योर ग्रेजुअलिज्म, डोलो, ये सब छोड़ जाते हैं कुछ कुछ. तो आई एम ओनली ट्राइंग टू कवर ऑल द पार्ट, ऑल योर एस्पेक्ट, क्योंकि ये एक बार अगर पढ़ लिए तो ये तो याद रह जाएगा. ठीक है, आपका क्या काम है, जैसे कि मैं पहले प्रीवियस में बोला हूँ कि बीच बीच में इसको बस रिवाइज करते रहिए. सो व्हाट इज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ये क्या बोल रहे हैं, डोलो क्या बोले कि एक अगर फॉर्म है और इवॉल्व हो गया, ठीक है, और फिर उस कंडीशन में बैक नहीं हो सकता वो. ओके, बट दिस इज नॉट द केस. ये ऐसा नहीं बोले हैं. देखो ये सिंपल, अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे ये ऐसा लगेगा कि जो एक फॉर्म अगर नया एक फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, वो अपने पुराने वाले फॉर्म पे वापस नहीं आ सकता. बट डोलो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि वो जिस प्रोसेस से एक ओल्ड फॉर्म एक न्यू फॉर्म में वापस, सॉरी, एक न्यू फॉर्म एक ओल्ड फॉर्म में वापस आ सकता है. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से गुजर के, this process of evolution or this process of the path they cover or the condition में वो गया है, ठीक है, वो नया फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, और फिर उस पाथ में ऐसे बैक करके नहीं आ सकता. ठीक है, सो डोलो इज टॉकिंग अबाउट योर प्रोबेबिलिटी. वो क्या बोल दिए कि एक्चुअल में जो अपना पाथ है, एक्चुअल पाथ है एक ओल्ड फॉर्म को इवॉल्व होके नए फॉर्म पे जाने को, उस पाथ को ये रिवर्स नहीं कर सकता. ये न्यू फॉर्म से फिर से ओल्ड फॉर्म आ सकता है. इट माइट बी पॉसिबल, बट इट इज ऑब्वियसली नॉट वेरी रेयर, बट इट पॉसिबल. बट जिस पाथ से वो इवॉल्व हुआ है वो पाथ रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट बैक नहीं हो सकता. सो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हम लोग अगर एक चीज़ को पढ़ लिए, कि ट्राइलोबेटा, जैसे कि हम लोग वो ग्रेजुअलिज्म में देखे कि एक गैस्ट्रोपोडा था और गैस्ट्रोपोडा का इवोल्यूशन होकर कुछ कॉइलिंग में चेंजेस हुआ. तो ये बस एक ही प्रोसेस है, दिस इज नॉट इरिवर्सिबल. एंड फॉर दिस डाटा वी कैन रिलाई ऑन द कोरिलेशन. ठीक है, ये डाटा पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं फॉर द कोरिलेशन पर्पज. तो कोरिलेशन का बेसिक एक रूल है, ये वाला रूल, लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. समझ में आया? एक बार पढ़ लेना ये, देन इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, बाद में आप आस्क कर सकते हैं. अच्छा, आई एम ऑडिबल ना सबको? हेलो, ओके, बीच में बोलते ना, मुझे फिर मान लो कट गया रहता है.
ठीक है। ओके, देन वी आर गोइंग टू द स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन। जनरली स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में क्या होता है कि अलग अलग स्ट्राटा को हम लोग कोरिलेट करते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, दिस इज इम्पोर्टेंट, इज योर लिथोस्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन, कि कुछ कुछ जो फॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ एरिया का फॉर्मेशन का सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पे देख लिए कि लेट से ये कोल है और कोल के ऊपर पर्पल सैंडस्टोन है, ठीक है, और इसको हम एज निकाल दिए। पर और किसी एरिया पे हमको क्या मिला कि ऊपर मिला कोल और नीचे मिला पर्पल सैंडस्टोन, बट उनका फॉर्मेशन सेम है, मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्वियसली उल्टा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फोल्ड फोल्ड कुछ तो हुआ है ताकि ये उल्टा हो गया ये, ठीक है। तो लिथोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम लोग जो कोरिलेट करते हैं उसको बोल रहे हैं हम लिथोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन। यहाँ पे क्या क्या रहता है, मेनली लिथोलॉजी, कलर, स्ट्रक्चर, थिकनेस एंड दैट। तो यहाँ पे तीन इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स आ रहे हैं लिथोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन के लिए। तीन इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और दिस इज गिवन बाय योर स्टेनो। तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन कि हॉराइजॉन्टैलिटी गिवन बाय हुम, ठीक है, किसने दिया। तो यहाँ पे क्या है, स्टेनो का प्रिंसिपल क्या क्या है, तीन, कि ऑब्वियसली ओल्डेस्ट के ऊपर यंग रहेगा स्ट्राटा, ठीक है, ओल्ड रहेगा नीचे और ऊपर जैसे हम जाते रहेंगे ये क्या होता रहेगा, यंग होता रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट। देन सेकेंड इज योर हॉराइजॉन्टैलिटी, मीन्स फर्स्ट जो फॉर्म होगा जब एक बेड, वो कैसा रहेगा, हॉराइजॉन्टल रहेगा बेड। फिर अगर हमें फोल्ड फोल्ड जो मिले बस वो अलग चीज़ें हैं, बट फर्स्ट जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, हॉराइजॉन्टल होगा। दिस इज हॉराइजॉन्टैलिटी। और क्या है, एक स्ट्राटा थिकनेस में और वाइड में फैल सकता है जब तक उसके आगे कोई काउंटर बैरियर नहीं आ जाता, तब तक वो फैल। मान लो कि ये पर्पल सैंडस्टोन है, तो पर्पल सैंडस्टोन ये यहाँ पे डिपोजिशन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। लेट से कुछ अलग से यहाँ पे सी ना हो जाए या फिर कुछ माउंटेन ना आ जाए, ठीक है। These three important principles are given by the Stano, and these important are for our lithostratigraphic correlation. Steno, okay. Then your chronostratigraphy, ठीक है। chronostratigraphy में क्या हो रहा है कि देखो, chronostratigraphy में मेन आ रहा है कि अगर मान लो एक सेम टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेशन हुए लिथोलॉजी। ये लिथोलॉजी किसी और के टाइम से फॉर्मेशन हुआ, इसका कंडीशन कुछ और था, इसका कुछ कंडीशन और है। बट इन आवर क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह बोल रहा है कि सेम टाइम पे मान लो एक ओशन वाला एटमोस्फियर है, तो सेम टाइम पे आपको बीच भी तो फॉर्म होगा और वहाँ पे नियर शोर रहेगा, उसके पीछे सैलो मैराइन रहेगा, फिर डीप मैराइन डिपोजिट रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अलग अलग टाइम पे हो रहा है, ये एक ही टाइम पे हो रहे हैं बट अलग अलग फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। ये क्रोनोस्टैटिग्राफी में आ रहा है, ओके। सो फॉर द क्रोनोस्टैटिग्राफी में इंपोर्टेंट क्या है याद रखने को, दिस इज योर टाइम रॉक यूनिट एंड योर टाइम यूनिट। रॉक यूनिट आपका कहाँ पे आ गया, लिथोस्टैटिग्राफी पे, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ऑब्वियसली आप लोग भी देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ रॉक यूनिट, टाइम रॉक यूनिट एंड टाइम यूनिट। एंड यहाँ पे भी टर्म चेंज कर सकता है, दिस इज योर क्रोनोस्टैटिग्राफी, दिस इज योर जियो क्रोनोलॉजी। तो क्या है, सिस्टम का पीरियड, सीरीज का इपॉक्स, ठीक है, स्टेज का एज, लाइक दैट, ओके ओके। तो आगे का है बायोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक बायोसिनोज, थैनोसिनोज एंड योर इंडेक्स फॉसिल्स एंड और द डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, ठीक है। ये लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।
ओके, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।